So unfortunately, there was a stampede in New Delhi, and it shocks the world. I saw this on my timeline, and I was like, I know there's gonna be a video about this. So let me see what happened. My heart just goes out to everybody affected with this. You just battled a bat? Was it Batman? नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां पर लगातार हम एक के बाद एक स्टैम्पीड के इवेंट देख रहे हैं। रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा न्यू दिल्ली में Shuby, did you win? जो भगदड़ मची है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, पूरी दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है। पूरी दुनिया शॉक्ड है ये देखकर कि इंडिया, जो हम काफी बार बात करते हैं एक फ्यूचर लीडर बनेगा, फ्यूचर एक ग्लोबल सुपर पावर हो सकती है, यहां पर कैपिटल में इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट थी कि यहाँ पे 18 लोग स्टैम्पीड में मारे गए ना। मुझे यहाँ पर एक बात यह बोलनी पड़ेगी, स्टैम्पीड में मरना ना, इट इज This is all I saw. I think I might have even seen this. It was just the 18 killed in the New Delhi station crush. This is exactly kind of the image I saw in this video. I'm not gonna go up and play it, but man, my heart goes out to this. This is so sad and so tragic. वन ऑफ द वर्स्ट वेज टू डाई। एक आदमी गिर चुका है भाई साहब, एक के ऊपर एक, बहुत सारे लोग डर के मारे उसके ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रहा, धीरे धीरे घुट के मर गया। इस तरीके से 18 लोग मारे गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। प्रयागराज में भी हमने रिसेंटली देखा कि एक स्टैम्पीड हुई है, उस पर भी मैं अभी आऊंगा वैसे। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे CNN, यूरोप का मीडिया, जापानीज मीडिया, सब लोग ये बात देख रहे हैं, क्योंकि जब आपकी कैपिटल में ऐसा हो जाता है ना, तब जनरली सवाल उठते हैं कि दिस इज Just look how many people are here at this train station, though. This is insane. सपोज टू बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी। यहाँ पर तो आपकी मैनेजमेंट एटलीस्ट टॉप लेवल पे होनी चाहिए। इधर भी कैसे आपके देश में स्टैम्पीड हो गई, और ऑब्वियसली हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में ट्वीट करी है। उन्होंने ये कहा है कि डिस्ट्रेस्ड बाय द स्टैम्पीड एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। The fault of both the people and management. And you know what, Sticks, is you're absolutely right. You're absolutely right. I want to go full screen for this because at some point in time, yes, you have to look at the government for like infrastructure and management and like civic sense. But at the end of the day, the people that living in that community have to have the sense, the respect to not crowd that station so much so that it becomes overpopulated and dangerous, right? You shouldn't need other adults to keep other adults in check and in line. And in fact, that should be the major priority, is raising that level of civic sense so that this doesn't happen. And it's just out of respect, not just for yourself, but the people around you. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. Now एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सबका कॉज क्या है, कैसे लोग ही आपस में इतने ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं कि एक Overpopulation for a city for sure, but still there has to be a civic sense not to flood the subways like this. दूसरे आदमी पे चढ़ के भाग रहा है, उसको नोटिस भी नहीं कर पा रहा कि वो कर क्या रहा है, नीचे कई लोग दब के मर गए। ऐसा हुआ कैसे? देखिए, सबसे बड़ा कॉज यहाँ पे बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा टिकट्स बिना वजह बेच दी गई। Damn. लोग टिकट्स बुक करते हैं, अचानक से ना एक स्पाइक देखा गया। एवरेज देखा जाता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में ना 7,000 टिकट्स बुक होती हैं 6 PM से लेकर 8 PM में हर दिन। And don't get it twisted, guys. I don't want to come across like I'm an American and I think we have the best civic sense in all the world, because I definitely don't think we do. Right? I think this is an issue once more that America shares as well. That as a community, we're kind of shifting things up right now. We, I think, as a nation right now, are trying to raise our civic sense by calling out the government, trying to allow this country to be ran on meritocracy. So I think this is something that we're also dealing with. I want to point that out. अचानक से सैटरडे को हम देखते हैं ये नंबर अचानक से बढ़कर 9,600 जनरल क्लास सीट्स पे पहुंच जाता है, मतलब कि 2,600 टिकट्स ज्यादा बेची गई। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रयागराज में सब लोग पहुंचना चाहते हैं, इस वजह से एक्स्ट्रा टिकट्स बेची गई। मगर साथ ही साथ प्रबंध ये करना चाहिए था, जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में इतने सारे एडिशनल लोग आने वाले हैं ना, तो पहले ही क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। हुआ यहाँ पर क्या कि बहुत सारी जो एक्स्ट्रा टिकट्स बेची गई, लोग इकट्ठा हो गए प्लेटफॉर्म नंबर। And Taylor Swift isn't even performing here. Why are all these people here? T Swift's not even there. 15, 14, 13 और 12 पर कुछ ही प्लेटफॉर्म्स में अचानक से बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग सोशल मीडिया में इसके बारे में लिख भी रहे थे कि देखिए, Beast Boy Gaming isn't doing like a live stream. Rock Coley isn't there. I mean, he's not hitting centuries anymore. So like, why are you flooding the streets?
अचानक से ना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तब भी हमने Oh, देखा that's कि true. स्विफ्ट एक्शन लिया नहीं गया और इन दी एंड यहाँ पे हुआ क्या, देखो कहीं पर भी आप इतने सारे लोग डाल दो, आई मीन जो इमेजेस आई हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, इतने सारे लोग वहां पर कहीं भी पैनिक मगर मचता है ना। अब जैसे बताया जा रहा है यहाँ पे कोई स्लिप कर गया और अचानक से लोग डरना शुरू हो गए, लोगों ने भागना शुरू कर दिया और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये स्टैम्पीड का केस देखने को मिला। नाउ ये डिप्रेसिंग है। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, आई एम एम्बेरेस्ड, आई एम सैड कि यार हमारे देश में लगातार ऐसे क्यों हो रहा है। लगातार मैं आपको समझाता हूँ मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ। Mm. विकिपीडिया पे आप अगर जाओगे तो वहां पे आपको एक पेज मिल जाएगा। पेज का नाम है लिस्ट ऑफ फेटल क्राउड क्रशेस। यहाँ पर जो भी दुनिया में सबसे बड़ी भगदड़ हुई है उनका सारा डेटा है और जो भी लेटेस्ट भगदड़ हुई है उसको भी ये रिकॉर्ड करते हैं। This just caught my eye. Hold on, look at this one down here. In May of 1770, at least 133 people died from a fireworks display at the Place de la Concorde in Paris. So not only was Concorde a tragic release, tragic video game release, but it was also a tragic day in history or a tragic place in history where people died from fireworks. Oh my god. यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है deadliest modern Talking about a crash and burn IRL and Concorde crash and burn as a game in virtual reality. क्राउड, जो क्राउड क्रश भगदड़ जो हुई थी वो हज पिलग्रिमेज में हुई The थी, जो Concorde is just 1919 में cursed. मैका में एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। 1400 लोग अनफॉर्चुनेटली मारे गए थे। फिर 2015 में मीना स्टैम्पेड हुई थी जहां पर 2400 लोग मारे गए ना। ये तो हम बात कर रहे हैं 10-20 साल पहले। अगर हम मोस्ट रीसेंट डेटा देखें ना तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया 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 What the दुनिया hell? में रीसेंट जो 3 बड़ी स्टैम्पेड हुई हैं तीनों Yeah, no, this is no good, y'all. This is since 2025, we've had three. We've had three guys. फॉर्चुनेटली भारत देश में हुई। 8 जनवरी 2025 में आपको याद होगा आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ मची थी, 6 लोगों की मृत्यु हो गई। फिर प्रयागराज में अभी जो भगदड़ मची है वहां पर 30 से ऊपर लोग बताया जा रहा है You guys are trying to speed run this. Stop trying to. This is not what you should be speed running. मारे गए। फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में Yeah, on भगदड़ मची है, top. 18 लोग यहाँ पे मारे गए ना। भगदड़ स्टैम्पीड जो है ना ये डेवलप्ड वर्ल्ड में बहुत ही रेयर होता है। ये यूजुअली हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहीं पर होती है। जैसे इंडिया के अलावा इस लिस्ट में जो मोस्ट रीसेंट स्टैम्पीड हुई है वहां पे आपको दिखेगा नाइजीरिया देश। जो पिछले 5 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं ना, 2 नाइजीरिया, 1 Be careful, Nigeria might catch up to y'all. इंडिया। बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो गिनी, फिर से हमारा प्यारा भारत, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर से हमारा प्यारा Another भारत। India Of course, right यहाँ पे मैं there. हाथरस क्राउड क्रच की बात So कर रहा don't हूँ। forget उत्तर about प्रदेश us. में हुआ था, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। Uttar Pradesh. Isn't this where the Mahakam is? 123 लोगों की मौत हुई थी। ये 2024 के इंसिडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी कंट्रीज देख लो, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर, ये सब कंट्रीज ना कोई डेवलप्ड नहीं है। अगर कोई डेवलप्ड या फिर सेमी डेवलप्ड कंट्री की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इधर आप देख पाओगे युगांडा, पाकिस्तान, यमन, तो साउथ कोरिया आता है। साउथ कोरिया में अक्टूबर 2022 में I mean, all of these are utterly tragic events. आपको याद होगा Like I know I'm making light of it, but these are all tragic events. सोल, इनकी राजधानी में स्टैम्पेड हुई थी। 150 के ऊपर लोग मारे गए थे। तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो सोल ने बहुत ज्यादा कड़े लॉज बना दिए हैं अपनी सिटी में Y'all are कि कल number को फिर से one. ऐसी स्टैम्पेड ना हो, लोग एक जगह इतने सारे इकट्ठा ही ना हो। मगर भारत में हमको जेन्युइनली ये सवाल रेज करना पड़ेगा कि दुनिया में पिछले 10 सालों में आप जितनी भी स्टैम्पेड देख लो, बार बार हमारा प्यारा भारत यहाँ पे इंसिडेंसेस क्यों हो रहे हैं। और अगेन मैं ये बात रिपीट कर दूं, ये चीज पैन इंडिया है। कहीं किसी स्टेट को लोग All the countries on the list are poor. It makes you think it's a civic sense kind of issue, right? ब्लेम करना स्टार्ट Maybe a population issue as well. कर दे कि जी यहाँ के तो लोग ही ऐसे होते हैं। जम्मू India, I wouldn't consider poor though. कश्मीर, आंध्र Not the प्रदेश, fourth richest, महाराष्ट्र, like कहीं भी fourth चले जाओ ना, greatest country ये in terms एक of पैन GDP. इंडिया प्रॉब्लम है। और जितना हम इसको रिडिक्यूल करेंगे क्या ये तो कुछ स्टेट्स में ही होता है ना, इट विल हैपन ओवर एंड ओवर। मुंबई में आपको याद होगा 2017 में स्टैम्पेड हुई थी, 22 लोग मारे गए थे। और ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। Fifth? ऑल इट I विल thought you were टेक fourth. आर 2 थिंग्स, 2 चीजें चाहिए I हमको। thought you passed Japan. एक तो गवर्नमेंट को ना प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी कि एक जगह पे एक सर्टन लिमिट से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। इसमें देखिए पुलिस प्रशासन जो वहां पे गवर्नमेंट है उनको जेन्युइनली इस चीज को फॉलो करना होगा विद डिसिप्लिन
कि एक जगह पे ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात देखिए, हमें ना एज इंडियंस, अगेन बोलूंगा, चाहे आप कहीं के भी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं के भी हो, सिविक सेंस सीखनी होगी। Oh shit. He said it. He said the words. एक दिल तोड़ने वाली मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं यहाँ पे। अब ये जो वीडियो अपने सामने आप देखने वाले हैं, ये इंडिया की नहीं है, ये लंदन की है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक बस आके रुकी है। ये सारे जो इंडियन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, कोई एमबीए करने के लिए आया है, कोई काम करने के लिए आया है। जो नेटिव लोग हैं It's like, hold on, let's look at this. बस आके रुकी। It's like, okay, guys, if you're over here and the door's here and you're all the way back here, get in a line. Don't try to funnel your way through the door. Just get nice, organized in line. And if you missed it, then maybe you should have shown up on time, or maybe you have another alternative route. है ये सारे जो इंडियन यहाँ One Indian, just this one guy right here. I don't know, maybe two, maybe three. पे आपको दिख रहे हैं, कोई एमबीए करने के लिए आया है, कोई काम करने। At least this guy right here, shout out to you, homie. He said, you know what? I'm not going to be the stereotype here. के लिए आया है जो नेट। He said, I'm not going to, they look at him and he's like, I know. I don't know what to tell you. लोग हैं यूके के, लंदन के, वो दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि इन लोगों को ऐसी जल्दी क्या है, लाइन बना लो, आराम आराम से चले जाओ, ये धक्का देकर नहीं मैं पहले आगे, ये सब करने की जरूरत क्या है? Like, और ये लंदन में भी हम करते हैं। Come on, y'all. This guy's cutting off people. Like, if people are families, you're making the getting on the bus an actual task. This shouldn't be so damning. ये आप कह लीजिए हमारे डीएनए में बस चुकी है। एज इंडियंस के हम लोग एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से आगे नहीं बढ़ते। लाइन लगाना। Like, what do you guys do in classrooms? Didn't you guys have, when you went to lunch, don't you guys get up and get in a single file line and like walk to lunch like organized people instead of just fucking madness out in the streets? एक दूसरे को धक्का ना देना, ये सब चीजें आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज में कॉमन है। सिविक सेंस उनकी एक बड़ी आबादी सीख चुकी है। वहां पर भी ओकेजनली, रेयरली आप देख लो, कई दशक बीत गए, एक इंसिडेंट हो जाता है। मगर ये जो सीन है ना, मैं बता दूं, पहली बात तो अगर मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाऊं ना, बोलूं ये दिल्ली, आप मान जाओगे। लंदन में भी जाकर ना ये हम लोग करते हैं। इससे पहली बात तो इंडियंस का नाम भी खराब होता है। वो वहां पे जो रेसिस्ट लोग हैं उनको भी बोलने का मौका मिल जाता है। और अगर कोई मेरी वीडियो कोई हायर अप में कोई पावरफुल व्यक्ति सुन रहा है, या फिर अगर कुछ कहीं से भी आवाज पहुंच रही है, प्लीज देश में सिविक सेंस पर काम करिए। चाहे एक बड़ा प्रोग्राम शुरू करना हो, एक शुरुआत ही करनी हो, छोटा सा, चाहे 1-2% लोगों पर भी इसका इम्पैक्ट आए ना, कहीं से शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। हमारे देश में देखिए सिविक सेंस है नहीं। लोग लाइन लगाना, क्यूज में वेट करना, एक दूसरे को स्पेस देना, इस सब का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। और ऑब्वियसली जो विचार मेरे मन में आ रहा है, आप में से भी कई लोगों के मन में आ रहा होगा। कई जो लॉयर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली है। ये कहा है कि कुछ ना कुछ गाइडलाइंस बनाओ, ये कुछ क्राउड मैनेजमेंट को लेकर मेजर्स लो प्लीज। बार बार ऐसा हो रहा है, कहीं तो देश को डिसिप्लिन दिखाना होगा और इंश्योर करना होगा कि ये रिपीट ना हो। और मैं I mean, like, there should definitely be areas that are blocked off, like, that are in between these doors. Like, there should be no reason people are, like, lined up against the train right here. Like, get off that, like, little black pad. अगेन बोलूंगा, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इसका सोल्यूशन क्या निकाले, बहुत ही मुश्किल पजल है। डिसिप्लिन से अगर हम काम करें, सरकार भी अपनी पूरी इंटेंशन से यहाँ पर ध्यान दे इस चीज को लेकर, हमारे देश में देखिए स्टैम्पीड नहीं होगी। स्टैम्पीड बहुत अनफॉर्चुनेट है। और पूरी दुनिया हमको कैसे देख रही है कि आज भी इनकी कैपिटल में तो ये हालत है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उनको मार देते हैं। आई मीन प्लीज, समथिंग नीड्स टू बी डन। और मैं इस वीडियो में एज ए प्ली के रूप में कह रहा हूं, वी नीड अ चेंज। और होप There, you need a change, but it can't just happen from the government. It has to become from leadership, inspiring people to be better, right? And it's not going to happen overnight, and it's probably going to be a generational thing. But you start now so it can happen sooner rather than later. होपफुली सुप्रीम कोर्ट में ये जो PILs अभी डाली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरवेंशन करेगा एंड वी विल टेक सम कंक्रीट स्टेप्स। क्योंकि मैं नहीं चाहता इस लिस्ट में ना कॉन्स्टेंटली हम लोग इंडिया को देखते रहे, इंडिया इंडिया इंडिया। एक और इंसिडेंट कहा हुआ इंडिया, वी नीड टू स्टॉप समवेयर। सो होपफुली आप इस मैसेज को फैलाएंगे, रेज दिस इशू। No, truly, this is an issue that it sucks to see. You never want to see anybody die in a stampede. Death sucks. There is such a thing of survival of the fittest, but
ideally survivalism shouldn't be happening on the way to take a train, right? So the government should help. It definitely should enforce rules and guidelines and enforce those. But it should be up to the people living within that community to have enough respect for themselves and the people around them to be better. I mean, ultimately.